Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Friction. We have already some idea of friction. In this section, we will learn in detail about frictional force, its causes, types, advantages and disadvantages in daily life. फ्रिक्शन हमको पहले से ही थोड़ा आइडिया है फ्रिक्शन का. इस सेक्शन में हम फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को, इसके कॉजेस क्या हैं, टाइप्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हैं डेली लाइफ में. What causes friction? Frictional force is caused due to the opposition by the irregularities of the two surfaces in contact. These irregularities interlock with each other and oppose the motion when an external force is applied. If the surface of contact is rough, friction is more. If the surface of contact is smooth, then the friction is less. फ्रिक्शन क्यों कॉज हुआ है? फ्रिक्शनल फोर्स कॉज होता है क्योंकि अपोजिशन होता है, इरेगुलरिटीज़ जो होती है दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में होते हैं, उनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कॉज होता है. ये जो इरेगुलरिटीज़ होते हैं वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं और जो मोशन को ये अपोज करता है, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो अपोज करता है मोशन को. अगर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, अगर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होता है. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन फोर्स appears only when an external force is applied on the object. If the object is at rest, there is no frictional force. Frictional force acts opposite to the direction of the applied force. फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है दो टाइप्स के मटेरियल के ऊपर जो कांटेक्ट में होते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स तभी अपीयर होता है जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उधर फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं है. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट होता है. Types of friction. There are two types of friction, static friction and kinetic friction. When the object is at rest, that is, when no external force is applied on the object, there is no frictional force. Figure 10.12a. When we try to push an object by applying an external force, it may not move. This is when the two surfaces in contact move against each other. The irregularities between the surfaces cause an opposition to the motion of the object. This equalizing opposition force acting against the external force and preventing motion is known as static frictional force. Figure 10.12b. Types of friction. Two types के frictions होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, जैसे आप फिगर 10.12a में देख सकते हो. और जब हम पुश करते हैं ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, हो सकता है वो मूव नहीं हो. कब मूव नहीं होता है? जब दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं और उनके इरेगुलरिटीज़ होती हैं दोनों सरफेसेस के बीच में, जिसमें अपोजिशन टू मोशन कॉज होता है फोर्स और इक्वलाइजिंग हो जाता है अपोजिशन फोर्स. तभी किसके अगेंस्ट में? एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, जो प्रिवेंट करता है मोशन को. इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. जैसे 10.12b में यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है वो इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है और इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. However, if the applied external force is increased further, then at one point the external force becomes greater than the opposing frictional force. Here the external applied force is able to overcome the opposition caused by the interlocking
of the irregularities between the surfaces of contact. At this point, the object begins to move forward. The maximum static frictional force between two surfaces in contact beyond which the object starts moving over the other surface is called limiting frictional force. This frictional force continues to act against the external force, however, it is not greater than the externally applied force. This opposing frictional force, which acts when the object is moving, is called kinetic frictional force, figure 10.12c. हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो इंक्रीज होता है एट पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स से ग्रेटर होता है तो वो ग्रेटर होता है अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये ओवरकम नहीं कर सकता है एक पॉइंट पे। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है दो सरफेसेस के बीच में, तब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंटिन्यू एक्ट करता रहता है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, और ये ग्रेटर नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड होता है। तो ये जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्ट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको हम फ्रिक्शनल काइनेटिक फोर्स कहते हैं, जैसे फिगर 10.2c में मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. Sliding friction is the frictional force acting between two flat surfaces when one object slides over another surface. Figure 10.13a. Here the surface of contact is more, therefore the frictional force is more. Rolling friction is the frictional force acting between two surfaces when one object rolls over the another object or a flat surface. Figure 10.13b. Here the surface of contact between the two objects is less and therefore the frictional force is less. Kinetic friction टू टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो एक्ट करता है टू फ्लैट सरफेसेस के बीच में जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर. यहाँ पे जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है. रोलिंग फ्रिक्शनल ये भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्ट करता है दो सरफेसेस के बीच में जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर और या फ्लैट सरफेस के ऊपर. यहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होता है, लेस होता है. जैसे आप फिगर 10.13 में ए में देख सकते हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है, और 10.13b में यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है. रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट्स देन टू स्लाइड्स ऑफ दैम. फिगर 10.14. दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई wheels were inverted to reduce friction. Nowadays, we see trolleys and even school bags having wheels. रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसीलिए इजी होता है रोल करना ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड करने के मुकाबले में. जैसे फिगर 10.14 में आप देख सकते हो, को रोल करना इजी है स्लाइड करने से, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से व्हील्स को इन्वेंट किया गया था फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. और आजकल तो आप ट्रॉलीज देख सकते हो और स्कूल बैग्स में भी व्हील्स होते हैं ताकि जो उसका फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके. इसीलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. इफ़ वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, these are all because of friction. If there were no friction, we would slip on the floor while walking, would not be able to hold a pencil or fix a nail on the wall. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शंस के क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. अगर हम ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, नेल को फिक्स करते हैं वॉल पे, ये सारा क्यों हो सक रहा है? ये हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है. अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम फ्लोर के ऊपर स्लिप कर रहे होते, चल नहीं सक रहे होते. और अगर हम पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं तो किसकी वजह से कर सकते हैं? फ्रिक्शन की वजह से.
नेल को हम फिक्स करते हैं वॉल में, किसकी वजह से कर सकते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन के हमको एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड. All machines having gears, pulleys and rollers require friction to work. Without friction, one part of the machine will not be able to move over another part of the machine. Brakes in all vehicles work on friction. Friction बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में. सारी मशीन्स को गियर्स होते हैं, पुलीज होती हैं, रोलर्स होते हैं. ये क्यों वर्क करते हैं? फ्रिक्शन की वजह से. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक पार्ट जो मशीन का है दूसरे पार्ट के ऊपर वर्क नहीं कर सकता था. ब्रेक्स जो व्हीकल्स में हैं वो भी वर्क कर रही हैं फ्रिक्शन की वजह से. डज फ्रिक्शन हैव एनी डिसएडवांटेज? ऑल मशीन्स हैव फ्रिक्शन. ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द मशीन पार्ट्स हीट अप एंड लूज एनर्जी. दिस ब्रिंग्स डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स. क्या फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी हैं क्या? सारी मशीन्स में फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स के पार्ट्स जो है हीटअप हो जाते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके मशीन का जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट वियर एंड टियर इन द मशीन पार्ट्स. दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड टू मेक दैम रन स्मूथली. Tires of the vehicles have grooves to provide better grip on the road. However, they get worn out due to friction. Figure 10.16. Tires have to be replaced if they get worn out. Friction has both advantages and disadvantages. That is why friction is called a necessary evil. Friction जो है वो wear and tear करता है मशीन पार्ट्स में, क्योंकि कॉन्स्टेंटली रन करती हैं मशीन्स, उसमें फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वियर एंड टियर होता है. टायर्स जो हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं ताकि बेटर तरीके से ग्रिप कर सकें रोड पे. ये भी वॉर्न आउट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से. फिर हम टायर्स को रिप्लेस करते हैं. फ्रिक्शन के दोनों एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसीलिए फ्रिक्शन को हम नेसेसरी एविल कहते हैं. Methods to minimize friction. Friction cannot be eliminated. However, it can be minimized. Following are the various methods by which friction can be minimized. Number 1. Friction can be reduced by applying lubricants such as oil or grease between the moving parts of a machinery. Figure 10.17. मेथड्स हैं जो मिनिमाइज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को, मतलब कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को. मिनिमाइज मीन्स कम करना. फ्रिक्शन को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते पर उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. वेरियस मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. नंबर 1 है लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करके, जैसे ऑयल, ग्रीस मूविंग पार्ट्स में हम अप्लाई करेंगे मशीनरीज़ में तो फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है. जैसे फिगर 10.17 में आप देख सकते हो कि लुब्रिकेंट अप्लाई किया जा रहा है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए साइकिल के चेन में. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्मूथनिंग द टू surfaces in contact. Smoothing reduces the roughness and reduces the interlocking between irregularities of the two surfaces in contact, thereby reducing the friction. फ्रिक्शन हम रिड्यूस कर सकते हैं दो सरफेसेस को स्मूथ करके. स्मूथनिंग करके भी हम सरफेसेस की जो रफनेस है उसको स्मूथ करके भी, इंटरलॉकिंग जो होती है, रेगुलरिटीज़ होती हैं उसको ख़त्म करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. नंबर 3. If there are rotating parts in the machine, they can be connected using ball bearings. Ball bearings, figure 10.18, help in reducing friction as the relative motion between two surfaces sliding over each other is converted to rolling motion. This reduces the friction between two surfaces in contact because, as we know, rolling friction is less than the sliding friction. जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं मशीन में वो जो कनेक्ट किए जाते हैं बॉल बेरिंग्स के थ्रू, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो फिगर 10.18 में बॉल बेरिंग्स होती हैं. ये बॉल बेरिंग्स रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन को. जैसे कि आप जानते ही हो कि रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. नंबर 4. अनदर मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन liquid is streamlining the shape
of the object. Figure 10.19. The resistance offered by the fluid, air or liquid against the motion of an object is known as drag force. Streamlining is to shape the object in such a way that it presents very little resistance, that is drag force, while moving through air or liquid, thereby increasing its speed. दूसरा मेथड जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करने का है वो है स्ट्रीमलाइनिंग शेप देने का ऑब्जेक्ट को. अगर हम स्ट्रीमलाइन शेप देंगे ऑब्जेक्ट को तो बहुत कम फ्रिक्शन फील होगा, बहुत फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. और जो ये रेजिस्टेंस ऑफर होता है फ्लूइड के द्वारा अगेंस्ट मोशन में ऑब्जेक्ट में, उसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं. स्ट्रीमलाइनिंग होता है शेप, ऐसा शेप ऑब्जेक्ट को देना जैसे बहुत कम ड्रैग फोर्स फील हो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या तो लिक्विड में या एयर में, और जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो. इन फिगर 10.19 स्ट्रीमलाइन शेप्स आर गिवन. ए, एरोफॉइल. द शेप ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग मिनिमाइजेस ड्रैग. जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं उनका शेप इस तरह से होता है जिसकी वजह से ड्रैग मिनिमाइज हो जाता है. बी, स्पीयर. Round objects such as baseballs experience a medium amount of drag. जो स्पीयर राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें मिनिमम अमाउंट ड्रैग होता है. सी, स्क्वायर. फ्लैट एज्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज बॉक्सेस एक्सपीरियंसेस हाई अमाउंट ऑफ ड्रैग. जो फ्लैट स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ड्रैग होता है. Methods to increase friction. Sometimes it is necessary to increase friction between surfaces. Following are some ways to increase friction. Number 1. Increasing the roughness of the surfaces in contact. As the surface becomes rougher, the irregularities of the two surfaces in contact increases, thereby increasing the friction. Number 2. Increasing the weight of the object. As the weight of the object increases, the object further presses down on the surface. Therefore, the irregularities get interlocked more and friction is increased. Method यूज़ होते हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, वो होता है दो मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. जैसे कि इरेगुलरिटीज़ जो होती है सरफेस में जो कांटेक्ट में आते हैं, उससे हम जो रफनेस है उसकी इंक्रीज़ करेंगे तो इरेगुलरिटीज़ जो सरफेस में है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा. वेट अगर हम ऑब्जेक्ट का इंक्रीज़ करेंगे तो भी फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ जो है इंटरलॉक्ड वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा फ्रिक्शन.